Bismillahirrahmanirrahim. Today we will discuss how to give presentation. What are the elements and what are the complements that are required while giving a presentation in front of the people or in front of the students. It doesn't matter either we want to present a topic or either we want to discuss any feelings in front of a group of peoples or in front of your class, in front of any others to whom you want to speak. So what is a presentation? First of all, a presentation is a means of communication which can be adapted to various speaking situations, such as talking to a group, addressing a meeting, or briefing a team, or even that you can say the words or saying that you have to say in front of the class or in front of your teacher. All these things are considered as your presentation. But in presentation, we are bound to speak, or we have to convince our people. um, while further moving towards what is the presentation and how many skills are required to give a good presentation, I want to let you know that the things that are very much familiar or very much important for the aspect of presentation, that is your saying, that is your speaking, that is your confidence, that is your communication aspect, according to which you are speaking. First of all, how many things are the part, or how many things, how many affects, or the just like the step of the presentation skills. We have four steps that are necessary to present a good presentation. First one, plan. Second one, preparing. Or third one, practicing. And fourth one, presenting. What is the plan? First of all, planning usually include following questions. Who is your audience? Why are they there? What is your goal? How long will it be? Where will it take place? First of all, let's move on to the first one. Who is your audience? It is necessary for a presenter to know the status of the audience, to status of the person in front of you are going to speak, or in front of, or to whom you are going to convince. Status is as much necessary, or to know the status is as much necessary as to know the vocab of your presentation. If 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 you do not if you do not very much familiar with the status of an audience, that will lead you, or that you will have to face the music related to your presentation. जस्ट लाइक अगर मैं आपसे कहूँ कि आपका स्टेटस क्या है, आपके ऑडियंस का स्टेटस क्या है। एक बच्चा जो है वो अपने बात करना चाह रहा है टीचर से, बट ही डजंट नो द एग्जैक्ट वर्ड्स, और he doesn't know how to behave with the teacher, and he comes in front of the days and start talking over that, even without knowing the salutation, without or knowing the presentation of the teacher, without knowing the presence of a teacher, or without indicating the good words for his or her teacher. अगर एक बंदा आ गया है बात करने के लिए, अगर उसे टीचर के स्टेटस का पता ही नहीं है और वो बात करेगा, डेफिनेटली वो ऊट पटांग वर्ड के सिलेक्ट कर लेगा जो टीचर को अच्छे नहीं लगेंगे और टीचर से मार्क्स नहीं देगा। अगर एक मैं क्लास ले रहा हूँ, आई एम टेकिंग अ क्लास ऑफ सिक्स ग्रेड स्टूडेंट्स, बट द मेथड, बट द प्रोसीजर, but the talking style is as I am considering, or as I am teaching to the student of a master level. एक बच्चा है सिक्स ग्रेड का और मैं उसे पढ़ा ऐसे रहा हूँ जैसे कि मैं फिलोसफी पढ़ा रहा हूँ मास्टर के बच्चे को। तो ये जो ऑडियंस का स्टेटस है ना, ऑडियंस को जानना है, मतलब हियर वी और हियर आई एम फेल टू अंडरस्टैंड द स्टेटस ऑफ माय ऑडियंस। तो डेफिनेटली जहां पर स्टेटस ऑडियंस का लेवल नहीं रखा जाएगा, तो वहां पर उसे बात समझ में नहीं आएगी। प्लान करते वक्त नेसेसरी फॉर यू पीपल टू नो द स्टेटस ऑफ योर ऑडियंस। आपका ऑडियंस जो है वो किस लेवल पे है, किस कैटेगरी का है। एक देहात से बच्चा उठ के आया है, he doesn't know the alphabet of ABC, or he doesn't know the alphabet of English language, and you are in the process of saying whole the lecture in English language. It is not good, or it is not foolish for us students to whom you are talking. The step of foolishness is belonging to you people. Why you are saying in English until or unless he is not in a position to understand your language? एक बच्चा जो इंग्लिश समझता ही नहीं है, तुम उसके सामने घंटा घंटा इंग्लिश का लेक्चर देते रहते हो, तो फॉल्ट उस बच्चे का नहीं है, फॉल्ट तुम्हारा है कि तुमने उसके स्टेटस पे जाके बात नहीं की। आर यू गेटिंग माई पॉइंट?
नेक्स्ट थिंग, व्हाई दे आर हियर, व्हाई आर दे देयर। आपने पहला उस ऑडियंस का स्टेटस जाना है, उसका स्टेटस क्या है, उसका लेवल क्या है। उस लेवल को मीट करने के बाद आपको ये देखना है कि, ये किस पर्पस के लिए है, जिस पर्पस के लिए है, जिस गोल के लिए है, क्या आपने उस गोल को हिट किया, आपने उस टारगेट को हिट किया, क्या आपने उस लेवल पे मीट किया जिस लेवल पे वो समझना चाह रहे थे। अगर आपको अपने ऑडियंस के आने का पर्पस नहीं पता तो आपको अपना गोल भी नहीं पता। why are they there, वो वहां क्यों है। इट मीन्स व्हाट इज योर गोल, आपका गोल क्या है। अगर आपको अपना गोल नहीं पता, इट मीन्स आपको पता ही नहीं है कि ऑडियंस क्यों यहाँ बैठे। बच्चे बैठे हैं फर्स्ट ईयर के, फर्स्ट सेमेस्टर के, और फरमान साहब पूरा लेक्चर इंग्लिश में पढ़ा देते हैं, और मेजर बच्चे चुप करके बैठे रहते हैं कि सर डांटेंगे, हम क्या कहें सर से कि सर हमें समझ नहीं आ रही। तो जरूरी है सर के लिए कि सर उन्हें उर्दू में ही समझाएं। और अगर सर ज्यादा लेक्चर इंग्लिश में देता है तो ये नहीं बात कि वो इंग्लिश जो है वो गलत है, नहीं, हो सकता है कि बच्चे को समझ ना आ रही हो, तो बच्चा इसलिए कहता है सर मुझे तो समझ नहीं आई। जब बच्चे को समझ नहीं आई तो फिर कंफर्म है, कंफर्म है कि आपने लेवल मीट नहीं किया। जब आपने लेवल मीट नहीं किया तो आपने उसका ये नहीं जाना कि बच्चा आया क्यों है, तो आपको ये नहीं पता आपका गोल क्या है। फिर ये देखना है हाउ लॉन्ग इट विल बी, कि कितना प्रोलॉन्ग रहेगी। आपके पास 40 मिनट है, आपकी प्रेजेंटेशन 1.5 घंटे की बन जाती है, तो ये भी अच्छी बात नहीं है। अगर आपको पता ही नहीं है कि ये आपकी प्रेजेंटेशन जो है, आपने वहां पर 50 स्लाइडें बना ली हैं, टाइम आपके पास 40 मिनट का था, और आपने अपने टाइम को मैनेज ही नहीं किया। जब आपने मैनेज नहीं किया तो आपकी प्लानिंग अच्छी नहीं है। नेक्स्ट ये है, इट इज नेसेसरी फॉर यू टू कंसिडर द प्लेस where you want to display or where you want to present yourself in front of the people। आपके लिए जरूरी है कि आप उस प्लेस को भी जाने जहां पर आपने खड़े होकर बात करनी है। पब्लिक प्लेस है या ऑफिशियल प्लेस है। जब ऑफिशियल प्लेस है तो आपकी ड्रेस मैटर करता है, आपकी जो ड्रेसिंग है, आपकी जो पर्सनैलिटी है वो मैटर करती है। अगर आपकी ड्रेसिंग अच्छी नहीं है, आपकी पर्सनैलिटी अच्छी नहीं है, पर्सनैलिटी से मुराद आपने ड्रेसिंग शूटिंग ठीक से नहीं की हुई, जब शूटिंग आपकी ठीक से नहीं है तो बच्चे या लोग जिनके सामने आप बात करना चाह रहे हैं, दे आर नॉट इन अ पोजीशन टू कंसीडर यू दैट यू आर अ प्रेजेंटर। वो आपको तो प्रेजेंटर ही नहीं समझेंगे, ये कहेंगे ये बताएगा हमें, ये समझाएगा हमें। और कहने की बात यह है कि प्लानिंग के अंदर 5 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप्स है कि आपको ऑडियंस का पता हो, दूसरा स्टेप्स ये है कि आपको पता हो कि वो आए क्यों है, तीसरा स्टेप ये है कि आपका गोल क्या है, मकसद क्या है, आप बताना क्या चाह रहे हैं, चौथा ये है कि ये प्रेजेंटेशन कितनी लंबी है, पांचवा ये है कि आप किसके सामने दे रहे हैं, कहाँ पर, प्लेस क्या है, ऑफिशियल प्लेस है, नॉन ऑफिशियल है, किसी ऑफिस में है, किसी कॉलेज में है, किसी स्कूल में है, किसी रोड के ऊपर है, आप एक बच्चे से बात कर रहे हैं या आप एक बड़े से बात कर रहे हैं या आप एक प्रोफेशन से बात कर रहे हैं। all these things are varies according to the your selection of words। हम सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स के मुताबिक बात करते हैं। अगर एक टीचर से बात कर रहे हैं तो हमारी सिलेक्शन ऑफ वर्ड कुछ और होती है, अगर हम किसी एक छोटे बच्चे से बात कर रहे हैं तब सिलेक्शन ऑफ वर्ड कुछ और होती है, अगर हम अपने कुलीग से बात कर रहे हैं तब सिलेक्शन ऑफ वर्ड और होती है। इट मीन वी डेल्ट विद द पीपल और वी डील विद द पीपल अकॉर्डिंग टू देयर स्टेटस। डू यू रिमेंबर, हम स्टेटस के मुताबिक बच्चों से बात करते हैं, पेरेंट्स से, टीचर से, बड़ों से, छोटों से, हर बंदे से हम स्टेटस के मुताबिक बात चलते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको प्लानिंग करनी जरूरी है, ये पहला स्टेप है प्रेजेंटेशन का। दूसरा स्टेप है प्रिपेयर करना है। अब प्रिपेयर करना है हमने, ठीक है, जब प्रिपेयर करना है तो प्रिपेयर करते वक्त हमें देखना क्या है। सबसे पहले जब हम प्रिपेयर करेंगे तो आपको उसका स्ट्रक्चर डेवलप करना है, स्ट्रक्चर एक ढांचा बनाना है। मैं इसमें कितनी बातें ऐड करूंगा, 5, 10, 15, 20, कौन कौन से पॉइंट्स होंगे। प्रॉम्प्ट बनाना है, विजुअल एड्स देनी है, वॉइसेस देनी है, अपीयरेंस बताना है, स्टाइल बताना है, क्वेश्चनिंग करनी है। ये हमारे पास 7 पॉइंट्स हैं जो आपको प्रिपेयर करते वक्त इसमें इस्तेमाल करने हैं। लेट्स मूव ऑन, वी विल डिस्कस वन बाय वन। फर्स्ट वन, स्ट्रक्चर। व्हाट इज स्ट्रक्चर? राइट योर प्रेजेंटेशन इन दिस ऑर्डर। ऑब्जेक्ट क्या है आपका, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, why you want to write this, why you want to present this presentation, what is the purpose, what is the objective of this presentation। आपका ऑब्जेक्ट क्या है, आपका मकसद क्या है इस प्रेजेंटेशन को देने का, आपको पता होना चाहिए। किस में आएगा, स्ट्रक्चर में। बिगनिंग दिया आपने वहां पर, मतलब कि इंट्रोडक्शन दिया, उसका मेन कॉन्टेक्स्ट लिखा, उसमें उसकी समरी बनाई आपने, कंक्लूजन दिया आपने, रिकमेंडेशन दी, क्वेश्चनिंग की आपने लास्ट पे। अगर उस बच्चों से क्वेश्चन पूछा या प्रेजेंटर जो है उसने ऑडियंस से बात की, उसके लिए क्वेश्चन छोड़े या उनके क्वेश्चंस के आंसर दिए,
क्या आपने ये स्ट्रक्चर सारा रख लिया है? ऑब्जेक्टिव के बयान करने के लिए 2 मिनट चाहिए, इंट्रोडक्शन बयान करने के लिए 2 मिनट चाहिए, मेन कॉन्टेक्स्ट बयान करने के लिए 5 मिनट चाहिए, कंक्लूड करने के लिए 5 मिनट चाहिए, क्वेश्चन आंसर के लिए 5 मिनट चाहिए। आपके पास टोटल मिनट्स है, लेकिन स्ट्रक्चर जो है आपका 50 मिनट का बन रहा है। आपके पास टोटल टाइम जो है वो 40 मिनट्स का है। नेसेसरी टू मेंटेन, नेसेसरी टू बिल्ड अ गुड स्ट्रक्चर फॉर योर प्रेजेंटेशन। बात समझ आ रही है? जी सर आ रही है। चलें, शुक्र है आ रही है। तो अगर नहीं आ रही तो बाद में क्वेश्चन कर लीजिएगा। जब स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो हमें इसका ऑर्डर रखना है, ऑब्जेक्टिव के सब तरफ बढ़ना है, बिगिनिंग और इसका इंट्रोडक्शन बयान करना है, मेन कॉन्टेक्स्ट क्या है उसके ऊपर फोकस करना है, कंक्लूडिंग रिमार्क्स देने हैं, और क्वेश्चन आंसर का सेशन भी उसमें रखना है, ताकि अपनी प्रेजेंटेशन आपकी एक अच्छी प्रेजेंटेशन हो। जब टीचर अपना लेक्चर ऑफ करता है, एट द एंड पूछ रहा है कोई क्वेश्चन है भी बच्चों के पास, और कुछ बच्चों के पास होता है और वो पूछ रहे होते हैं। इसी तरह प्रेजेंटर का भी हक बनता है कि वो बच्चों से पूछे या उन ऑडियंस से पूछे जिनके सामने बात कर रहा है कि आप मेरी बात समझ रहे हैं। अगर नहीं समझ रहे तो बताएं, मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ। Necessary to have a question at the last. And the next step that we have structure. First one, structure को again कहता क्या है, स्ट्रक्चर में कितनी चीजें आती हैं। कहता है इंट्रोडक्शन, क्या मतलब है इंट्रोडक्शन का? ग्रैब द ऑडियंस अटेंशन, आप ऑडियंस के अटेंशन को अटैच करो। अगर आप अटैच नहीं कर सकते तो फिर नहीं रह सकते। मैं कल ना बैठा हुआ था, when we utilize some other attentions, when we want to utilize attention of the audience, it is necessary to use other hints, other vocab, other sayings. जरूरी नहीं जो आपने प्रेजेंटेशन देनी है सारी प्रेजेंटेशन ही बोलते जाएं, उसमें हल्की फुल्की कोई लाइट सा जोक, कोई मजाक, कोई ऐसी बात जो लोगों के लिए लेसन हो, वो जरूर बताएं, ताकि जो रीडर्स हैं या जो ऑडियंस हैं वो आपके अटेंशन को मरकूज करते रहें, आप उनके टेंशन को कैच कर लें। जरूरी है इंट्रोडक्शन देते वक्त प्रेजेंटेशन का उनकी अटेंशन को जरूर कैच करें, कोई ऐसी बात जरूर कहें जिससे वो आपकी बात को सुनने पर मजबूर हो जाए। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर के दरमियान जब इंट्रोडक्शन की बात आती है तो वहां पर अटेंशन का कैच करना बहुत जरूरी है। मेन थीम जब आप लिखते हैं तो टॉपिक रेलिवेंट होना चाहिए, जो एग्जाम्पल दी है उस टॉपिक से रेलिवेंट होनी चाहिए, जो आप प्रेजेंट कर रहे हो एग्जाम्पल भी उस टॉपिक से रेलिवेंट होनी चाहिए। और जब आपने समरी करनी है या कंक्लूजन करना है तो उसका की मैसेज आपने बताना है कि ओवरऑल इसका क्रक्स क्या निकलता है। फिर आपके पास है जी प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट क्या है? योर प्रेजेंटेशन शॉर्ट, बुलेट पॉइंट्स, कीवर्ड्स ओनली, पुट योर इंटायर प्रॉम्प्ट्स ऑनटू योर पावर पॉइंट स्लाइड्स, दीज प्रॉम्प्ट आर फॉर यू। ठीक है? ऐसा ना हो आपको ये मेरी स्लाइड नजर आ रही है, ऐसा लगता है कि इनमें बहुत ज्यादा मटेरियल लिखा हुआ है, कहीं भी नहीं बहुत ज्यादा मटेरियल, चंद एक वर्ड है, चंद एक चीजें हैं जो मैंने लिखी हैं। कहने का मकसद ये है कि आप बुलेट लिखें, की पॉइंट्स लिखें अपनी प्रेजेंटेशन में। प्रेजेंटेशन के अंदर 15-15, 20-20 लाइनें मत घुसा दे कि वो पढ़ने वाला रीडर जो है वो पढ़ा ही ना जाए, इतना बारीक नजर आए बाद में। या आप इतना ज्यादा ना लिख दें कि पढ़ता पढ़ता बंदा उकता जाए। आप जस्ट पॉइंट लिखें और मटेरियल जो है अपने पास हार्ड फॉर्म में रखें जो आपने बोलना है, ताकि आप आसानी से बोल सकें, आप उसे कन्वे कर सकें। फिर विजुअल एड्स, आप कोई ऐसी तस्वीर, कोई ऐसी पिक्चर, ऐसी इमेज, ऐसी डिजाइन आप बनाएं जो लोगों को कैप्टिवेट करे, जो उससे रिलेट करती हो, ताकि लोग आपके मकसद को समझ सकें। यूज सिंपल फॉन्ट्स, कलर्स एंड ग्राफ्स, यूज इमेज एंड क्लिप आर्ट, 3 to 5 बुलेट्स पर स्लाइड, इससे ज्यादा ना हो। 7 पॉइंट से ज्यादा पॉइंट नहीं होने चाहिए। अगर ज्यादा हुआ तो इसका मीन आपने बहुत ज्यादा उसमें मटेरियल धंस दिया है। Don't overcrowd your slides. It will not look professional. New or different visual aids wake people up. नई चीजें, नई इन्वेंशंस, नई बातें लोगों को हमेशा मुतासिर करती हैं और उजागर रखती हैं। फिर वॉइस, आपकी वॉइस लाउड होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, पिच आपकी नॉर्मल होनी चाहिए, राइज एंड फॉल अंदर आना चाहिए आपकी आवाज में। आप कहीं पर एम्फसिस करें, कहीं पर ना करें। आपकी बात कभी जोरदार हो, कभी लो हो, लेकिन आपकी आवाज जो है इंप्रेसिव होनी चाहिए, अगला बंदा आपकी बात को सुन रहा हो। फिर नेक्स्ट आपका है अपीयरेंस। अपीयरेंस में क्या है? डार्क कलर रीड एज बिजनेस लाइक, और आप डार्क कलर्स पहने पढ़े ऐसे ही, आवाज काट रही है बहुत ज्यादा। कोई बात नहीं, आवाज नहीं क्लियर आ रही। आवाज कट रही है, रिकॉर्डिंग चल रही है, हो सकता है स्टेबल हो जाए और रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको फिर भी। बाकी मैं चेंज करता हूँ प्लेस अपने। अपीयरेंस में डार्क कलर्स पहने, ऐसे पढ़े जैसे बिजनेसमैन पढ़ रहा है। वेयर कंफर्टेबल शूज टू वेट योर फीट एवनली,
आसानी बिल्कुल सॉफ्ट लाइट हार्टेड जूते पहने जिनके ऊपर आप अपना वेट बर्दाश्त कर सकें। ऐसा ना हो कि आपको 50 मिनट खड़ा होना पड़े और आप जूते वहां पर, लड़कियां वहां पर 1.5 गज लंबी हील पहन के आ जाएं और बाद में वहां पर खड़ा ना हुआ जाए, परेशानी हो रही हो। अलाउ योरसेल्फ टू मूव अ बिट, हल्का फुल्की वॉक करते रहें। अगर वॉक करते रहेंगे तो आपकी आई कांटेक्ट बना रहेगा और लोगों के दरमियान कॉन्फिडेंट के साथ उनकी तरफ देखें, आई कांटेक्ट करें, इमेज उनके सामने रखें, अपनी इमेज को उनके सामने रखें ताकि लोग आपकी अपीयरेंस से मुतासिर होते रहें, आपकी जेस्चर से, आपके सिंबल से, ताकि बात आगे बढ़ती रहे। प्रोफेशनल ड्रेस कोड होना बहुत जरूरी है। फिर प्रोफेशनल वर्सेस नॉन प्रोफेशनल, अगर आप प्रोफेशनल ड्रेस कोड नहीं पहनते तो इट्स मीन नॉन प्रोफेशनल पहनते हैं, तो ये भी आपकी प्रेजेंटेशन के ऊपर बहुत बुरा इंपैक्ट डालेगा। फिर स्टाइल क्या होना चाहिए, यू ऑलरेडी हैव अ स्टाइल, डोंट कॉपी एनीवन। आप अपनी स्टाइल को कॉपी करें, किसी के स्टाइल मत कॉपी करें। फला टीचर ऐसे पढ़ाता है, फला बंदा ऐसा था, फला बंदा ऐसा था। आप अपनी कंसर्निंग लॉस कर लेंगे, आप अपनी पर्सनैलिटी लॉस कर लेंगे इफ यू ट्राई टू कॉपी एनी स्टाइल ऑफ एनी पर्सन। अगर आपने किसी के स्टाइल की कॉपी किया तो आप अपनी जात को छोड़ देंगे, आप पहनावा उसका रखेंगे, आप बोलचाल उसकी रखेंगे, आप चाल उसकी रखेंगे, आप अपनी जात को कत्ल कर देंगे, मार देंगे, पीछे छोड़ देंगे, आप सिर्फ उसको कॉपी करेंगे। यूज योर ओन वर्ड्स, यूज वर्ड्स एंड सेंटेंसेस यू यूज इन नॉर्मल डेज, आसान आसान वर्ड्स, सिंपल सिंपल वोकैब इस्तेमाल करें। ट्राई टू यूज सिंपल वोकैब, try to convince the people in as easy word as you want or as you have। आप सादा से लफ्ज इस्तेमाल करें, that will be easy to understand, जो आसान हो लोगों के समझने के लिए। ऐसी वोकैब इस्तेमाल ना करें जो लोगों को परेशान करे, जो लोगों को डिस्टर्ब करे। बी योर सेल्फ, इट्स मीन बिहेव योर सेल्फ। आप नेचुरल टोन रखें अपने, ओवर शोई मत बने, ना ही कॉन्फिडेंस को लूज करें, ना ही अपना ओवर कॉन्फिडेंस बनाएं। अगर आप ओवर कॉन्फिडेंस बनाएंगे तब भी प्रॉब्लम है, अगर आप अपना कॉन्फिडेंस लूज कर लेंगे तब भी प्रॉब्लम है। तो लिहाजा आपके लिए जरूरी है कि आप चीजों को साथ साथ लेके चलें। लेकिन इसके साथ क्वेश्चंस क्या होते हैं, स्केच एन आइडिया दैट व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस ऑडियंस में आस्क। एक जहन बना लें कि ऑडियंस आपसे कौन से सवाल पूछ सकते हैं, किस तरह का क्वेश्चन हो सकता है। प्रीपेयर फॉर योरसेल्फ और प्रीपेयर फॉर दैट, अपनी जात को तैयार रखें ऐसे रुझान के लिए कि यहाँ पर कोई सवाल पूछ सकता है या इस तरह की कोई बात कर सकता है। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम बढ़ रही है तो इट्स मीन आप उन क्वेश्चन को फेस नहीं कर पाएंगे। जब क्वेश्चन को फेस नहीं कर पाएंगे तो डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम होगी वहां पर अपने ऑडियंस को कन्विंस करने के लिए। जब ऑडियंस कन्विंस नहीं होंगे तो आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी कंसिडर नहीं की जाएगी, बिल्कुल भी अच्छी नहीं कंसिडर की जाएगी। फिर आपने तीसरा पॉइंट आता है प्रिपरेशन मटेरियल, आपने मटेरियल को कैसे प्रिपेयर करना है। यू कैन यूज फॉलोइंग आइटम्स टू मेक द कंटेंट ऑफ योर प्रेजेंटेशन। हैंड्स आउट बनाएं, उसके पर्सनल नोट्स बनाएं, इंटरनेट से डाटा लें या विजुअल एड्स लें, आप उसका मटेरियल इकट्ठा करें। प्रेजेंटेशन के अंदर जो स्लाइड्स बनानी है उसमें 7 पॉइंट से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 5 to 7 पॉइंट्स हो, इससे ज्यादा पॉइंट्स ज्यादा ना हो। और बकिया मटेरियल जो है हैंड्स आउट बना लें, अपने नोट्स बना लें ताकि यू कैन इजीली कन्विंस योर ऑडियंस। डोंट don't crowd your slides, try to write the extra information on your personal notes, on your handouts। अपने handouts बना लें extra material के लिए, personal notes के लिए, that will lead you और that will give you more confidence, जो आपको ज्यादा confidence देंगे just in order to overpower your miscellaneous। आप अपनी जो गलतियां कर लेंगे उनको कवर करने के लिए आपको काम देगा। फिर नेक्स्ट आई थिंक लास्ट पॉइंट है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करें, अपनी प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट करने से पहले प्रैक्टिस करें। रिहर्स ऑल पॉइंट्स बट यू प्रिपेयर, तमाम पॉइंट्स को आप वहां पर अपने आप प्रैक्टिस कर लें, खुद को आईने के सामने रख लें, एक ग्रुप की शक्ल में। वो जो ग्रुप की मेंबर्स आप कह लें ग्रुप की शक्ल में जो प्रेजेंटेशन देना चाह रहे हो उस प्रेजेंटेशन को आप देने के लिए पहले ग्रुप में आपस में दे लें, बजाय इसके कि पहले आप डायरेक्ट क्लास में चले जाएं, ताकि आप चीजों को जान सकें कि कहां पर आपकी मिस्टेक हो रही है, कहां पर आप गलती कर रहे हैं। रिहर्स विद ऑल विजुअल एड्स एंड हैंडआउट्स, तमाम जो आपने रिसर्च बनाई है, आपने जो नोट्स बनाए हैं या आपने जो आपने तस्वीरें निकाली हैं उन सब के साथ प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन टू मैनेज टाइम, टाइम मैनेज करने के लिए भी बार बार प्रैक्टिस करें। और फ्रंट ऑफ मिरर और फ्रेंड दोस्तों के सामने प्रैक्टिस करें या शीशे के सामने या आईने के सामने करें, लेकिन प्रैक्टिस जरूर करें। अगर आप नहीं करेंगे तो तब भी आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ये। फिर प्रेजेंट कैसे करना है, मेक अ स्ट्रॉन्ग स्टार्ट।
engage the audience in first 2-3 minutes. एक अच्छा स्टार्ट ले और स्टार्टिंग में ही अपने ऑडियंस की अटेंशन को कैच कर ले. अगर आप अपने मैनेज ना किया तो मामला खराब हो जाएंगे. Show your passion through your movements and gestures. अपना जज्बा जाहिर करें अपने इशारों से, अपनी आपके बॉडी जेस्चर से और अपनी मूव से, ताकि लोग आपकी तरफ मुतासिर हों. मेक एन आई कॉन्टेक्ट, लोगों की आंखों में नजरें मिलाएं. अगर आप नजरें चुराएंगे तो लोग आपको डिस्टर्ब करेंगे. अगर आप लोगों को नजरें देंगे, आप उनकी नजरों में डालेंगे तो डेफिनेटली वो आपसे नजरें चुराएंगे. टीचर जिस बच्चे की तरफ गौर से देख रहा होता है, बच्चे को ये लगता है शायद मुझसे सवाल ना पूछ ले, लेकिन जब टीचर किसी बच्चे से नजरें चुराता है तो बच्चा जरूर वहां पर सवाल पूछ लेता है. ट्राई टू कन्विंस अदर्स, दूसरों को मुतासिर करने की कोशिश करें. डोंट फॉरगेट टू स्माइल एज वेल, हल्की फुल्की मुस्कुराहट भी देते रहें. अनलेस योर टॉपिक इज वेरी ग्रिम, जहां तक कि आपका टॉपिक जो है बहुत अफसरदा है, लेकिन टच उसे देते रहें. Lack of experience, lack of enthusiasm, lack of practice, lack of related material, lack of confidence, hesitation, ambiguity in the result that you want to conclude. और ये सारी चीजें यहाँ पर नहीं होनी चाहिए. एक्सपीरियंस की कमी नहीं होनी चाहिए, इंथ्यूजियाज्म की कमी नहीं होनी चाहिए आपके पास प्रैक्टिस की कमी नहीं होनी चाहिए, रिलेटेड मटेरियल वाफर मिकदार में होना चाहिए, कॉन्फिडेंस ठीक होना चाहिए आपका, हेसिटेशन कोई जगह नहीं होनी चाहिए हेसिटेशन के लिए. फैक्टर्स फॉर सक्सेसफुल प्रेजेंटेशन. आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी कब क्यों नहीं हो सकती? बी ओवर प्रिपेयर्ड, ठीक है. रिहर्स एंड प्रैक्टिस, ग्रिप ऑन योर टॉपिक, नो योर सब्जेक्ट, बी पॉजिटिव, अवॉइड स्ट्रेस. और लास्ट वन कंक्लूड में क्या करेंगे? ऑलवेज प्रिपेयर, चैनलाइज योर फियर, इंटरेक्ट विद योर ऑडियंस. अगेन यही बात करना चाह रहा है कि अगर आप अच्छी प्रेजेंटेशन देना चाह रहे हैं तो आपके लिए जरूरी है कि आप अपने ऑडियंस की तवज्जो को मरकूज कर लें. अगर आप अपने ऑडियंस की तवज्जो को मरकूज नहीं कर पाते तो फिर कंफर्म है कि आप अपनी प्रेजेंटेशन को अच्छा